Hello and good evening, everyone. I'm Dr. Aman Khera. I'm co-founder K for Parents, and I welcome you again to another very important and a very specific discussion about eye problems in elderly. You would be surprised to know that vision loss or problems in the vision forms one of the major health problems in the world. It's a major health challenge in the world. हम सब सोचते हैं, we all think that heart disease, cancers, strokes, they form a major health burden in the world. Yes, it is true because those diseases have their own consequences. But little do we realize that issues like impairment in vision, they also have a major, I would say, a share of the health problem in the world. आप लोगों को हैरानी होगी, you will be surprised to know that I'm not talking of India, I'm talking of the world. In the world, after the age of 60 or 65, 1 out of 3 people have some form of visual impairment or a problem in vision. You can imagine 33%, that is the amount of disease load that is there in the world. Also, we all understand that if there is a defect in our vision, this leads to deterioration in the quality of life, especially in the elderly age group. अब आप खुद सोचें that if 30% or 33% of the people have a visual impairment, where could the quality of life go? Another very important thing which I would like to mention at the moment is we have to understand that the problem in vision need not primarily start from the eye itself. मतलब जो मेरा कहने का मतलब ये है कि इट नीड नॉट बी दी प्रॉब्लम प्राइमरीली शुरुआत आई से नहीं होती. देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस, लॉट ऑफ डिजीजेस which in the body, systemic diseases which have effect on the eyes. This we do not realize, and this is a very important thing. हम में से इतने लोग हैं जिनको डायबिटीज है. Do we realize that diabetes can damage eyes so much that it can even cause blindness? Smoking, high blood pressure, and not only that, taking excessive medicines or drugs or for some other reason can cause damage to the eyes. We are not aware of that. So today we are going to discuss certain very important things like what are the common eye problems that we can have, especially after the age of 60 or 65. Very importantly, what are the symptoms and the warning signs? What should we be alert for? That if certain things happen, we should immediately contact our doctor or go and visit the eye specialist. Thirdly, very important thing which I would like to mention here, which eventually our speaker is going to tell, is the importance and how often should we get our eye checkup done. मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे कि how many of us go and get a regular eye checkup done even if we do not have an eye problem? So this is a very important and a major thing. And of course, I have always been saying about the importance of preventive health checkup, which I have been repeating in almost all of our webinars. So to explain all this and clear our doubts, today we have invited Dr. Samiksha Chaudhary. Dr. Samiksha Chaudhary is a senior ophthalmologist, eye surgeon specialist from Shroff Eye Center. As we just showed the video, Shroff Eye Center is one of the most advanced, I would say, and the oldest eye center of Delhi NCR, and has been serving the community for decades together. So thank you very much, Dr. Samiksha, for joining us. Please clear the doubts and clear our vision about how to look after our eyes. Over to you, Dr. Samiksha. Thank you. Good evening, everybody. Namaste. Thank you, Dr. Aman Khera, for inviting me. And thanks a lot for giving such a good introduction regarding the eye diseases. Right, ये बहुत सही है कि eye is one of the most important sensory organ, and a vision, proper vision is the most important thing that is required for a healthy lifestyle. Because जैसे vision deteriorate होता है, वैसे ही हमारी mobility बहुत कम हो जाती है. So quickly, I would like to start with few diseases. First, I would like to deal with few important diseases, and that are the common ones. एंड जैसे हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हर व्यक्ति को चश्मा लगना, हर व्यक्ति को 40 साल के बाद एक पास का चश्मा लग जाता है, क्योंकि
हमारी जो लेंस है, आंख के अंदर जो लेंस है, वो धीरे धीरे उसका एक कैपेसिटी होती है पास का देखना और दूर का देखने की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये एक कॉमन चीज है कि हर व्यक्ति को पास का चश्मा लग जाता है। तो आई वांट टू स्टार्ट विद दिस बिकॉज दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर पास का चश्मा लग जाता है तो हमें पास का चश्मा लगा के अपने पास का काम करना चाहिए, ठीक है। Second, the most important problem is cataract. Cataract, also known as मोतियाबिंद, ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें जो मैंने लेंस की बात आपको की, वो लेंस एक स्ट्रक्चर होता है आई का, जिसके थ्रू लाइट जाती है और हम देख पाते हैं। वो लेंस जो आई का स्ट्रक्चर होता है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, और विथ एज, जैसे कि एक एजिंग प्रोसीजर है, जैसे कि हमारे बाल सफेद होते हैं, मैं पेशेंट्स को समझाती हूँ, जैसे कि हमारी नॉर्मल झुर्रियां पड़ती हैं, वैसे ही विथ एज इसमें एक ओपेसिफिकेशन, इसकी डेंसिटी चेंज होने लगती है, इसका टेक्सचर चेंज होने लगता है, और अब इसमें से लाइट साफ साफ नहीं जा पाती है, ठीक है। इस सिचुएशन को कहते हैं कैटरैक्ट या मोतियाबिंद। और इसका एक स्टेजेस होते हैं। शुरू में इसमें क्या होता है कि चश्मे से भी आपका विजन जो है वो बढ़ता रहता है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि जब चश्मे से भी विजन नहीं बढ़ पाता है, तब हमें वो जो लेंस है जिसका टेक्सचर चेंज हो चुका होता है उसको निकाल के एक आर्टिफिशियल लेंस हम उसी नंबर का डाल देते हैं। इसको हम कहते हैं कैटरैक्ट सर्जरी। और इसके बाद जितनी विजन आई के अंदर होती है वो पूरी की पूरी वापस आ जाती है, ठीक है। तो कैटरैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसमें स्ट्रेस करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनका एक आई का ऑपरेशन हो चुका होता है, इस और दूसरे आई में धीरे धीरे कैटरैक्ट जो है वो बढ़ता जाता है। तो इसका चेक करने के लिए आपको क्या है कि एक एक आंख बंद करके आपको देखते रहना चाहिए, कि कई बार क्या होता है, जो एक अच्छी आंख होती है हम उससे देखते रहते हैं, तो हमें जो आंख जो कमजोर हो रही होती है उसका पता नहीं चलता है। तो हमें एक एक आंख बंद करके भी चेक करते रहना चाहिए। कैटरैक्ट के लिए आपको रेगुलर चेकअप भी आप करा सकते हैं, या फिर आपको खुद भी पता चलेगा कि हमारा विजन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तब आप हमारे पास या किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास आ सकते हैं। यू कैन गेट द आई चेक एंड the eye specialist will at that time decide whether you need glasses or whether you have to go for the cataract surgery. So now we move on to one of the most, जैसे डॉक्टर अमन खेरा ने बताया कि कुछ शरीर की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डायबिटीज का आजकल हर तीसरा पेशेंट जो है वो डायबिटीज लेके आता है। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों से भी आंख में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि डायबिटीज से आपको जैसे पता है कि खून जो है वो थोड़ा थिक हो जाता है, और आंख की जो नलियां हैं, खून की नलियां हैं, वो ब्लॉक होने लगती हैं, और डायबिटीज के चेंजेस आने लगते हैं आंख में। पर ये इसको पता, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब तक इसमें विजन कम होता है, जब तक ये साइट सीइंग वाले एरिया पे असर करता है, तब तक हमारा बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। तो इसमें मैं आपको स्ट्रेस करना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसको डायबिटीज है उसको बिना किसी, भले उनको प्रॉब्लम हो या ना हो, उनको हर 6 महीने में एक बार अपनी आंख डायलेट करके चेक करानी चाहिए। डायलेट करने का मतलब एक बार हम ड्रॉप डाल के रेटिना चेक करते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेंटर पार्ट ऑफ आई से वो चालू हो, डायबिटीज पेरिफेरल पार्ट ऑफ आई से चालू होती है। और इसको मैं रेगुलर चेकअप पे स्ट्रेस इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम अगर राइट समय पे पता कर ले तो इसके जितने विजन थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम उनको राइट समय पे रोक सकते हैं। तो इसका मेन क्या है, जैसे ही आपको डायबिटीज का पता चले तो सबसे पहले आपको शुगर कंट्रोल रखना जरूरी है। टहलना, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको हर तरीके से अपना शुगर कंट्रोल करना है, टहलना है, डाइटरी कंट्रोल करना है, और हर 6 महीने पे अपना डायबिटीज, अपने आई का चेकअप करना है। इसमें साथ साथ जरूरी है कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में हो, बीपी भी कंट्रोल में हो, और आपका HbA1c जो 3 महीने की जांचें हैं वो भी 7 के नीचे आए।
पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आप रेगुलर चेकअप पे रहेंगे और आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा तो आपकी विजन कभी भी नहीं जाएगी। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और इसमें स्ट्रेस लेने की भी कोई बात नहीं है कि हम अगर लगातार कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो हमारे मतलब अगर हम कंट्रोल में हैं तो भी हमारी नजर चली जाएगी। अगर हमने सही समय पे डिटेक्ट कर लिया तो आपकी नजर बनी रह सकती। ठीक है, पर हाँ अगर कई बार क्या होता है कि सूजन आंख तक पहुंच जाता है, शुगर कंट्रोल में नहीं रह पाए, तब हम उसमें इंजेक्शंस लगाने पड़ सकते हैं, लेजर करना पड़ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से भी अचानक खून की नलियां बंद हो जाती है और अचानक आपको कम दिखने लग सकता है। तो जिनको ब्लड प्रेशर हो उनको भी 6 महीने में एक बार आई स्पेशलिस्ट को डायलेट करके चेक कराना बहुत जरूरी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, जिसकी मैं स्पेशलिस्ट भी हूँ, वो है ग्लूकोमा, जिसको कहते हैं काला मोतिया। काला मोतिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आई के प्रेशर चेंजेस के कारण ऑप्टिक नर्व, जो आंख का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है। और इस बीमारी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसको हम स्नीक थीफ ऑफ साइट कहते हैं, छुपा हुआ चोर। इस बीमारी में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसमें धीरे 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 सेंट्रल विजन, जो सामने जो विजन है वो डेटोरिएट नहीं होती है, जो पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन है वो डेटोरिएट धीरे धीरे कम होने लगती है। और ये बहुत ही स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे 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 नसों पे इफेक्ट होने लगता है। तो इसका एक ही इलाज है कि 40 साल के बाद, या जैसे अगर शुरुआत हो, तो हर आदमी को एक बार ग्लूकोमा पॉइंट ऑफ व्यू से चेक जरूर कराना चाहिए। जैसे अब आप लोग हैं एल्डरली पेशेंट्स, उनमें से किसी को अगर ग्लूकोमा है तो उनको अपने परिवार वालों को जरूर बोलना चाहिए कि वो चेक करा लें। और अगर आपके किसी भाई बंधु को या किसी रिलेटिव को ग्लूकोमा डिटेक्ट हुआ है तो आपको चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट रन्स इन फैमिलीज। एंड ये जैसे सुनने में डेडली डिजीज लग रहा है, ये उतना डेडली डिजीज भी नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक बार उसको जल्दी पकड़ लिया तो हम वही दवाइयों से उसको रोक सकते हैं और उस विजन को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि बहुत ही हुआ है कि काला मोतिया हो गया मतलब वो अंधा ही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। काला मोतिया अगर किसी ने नहीं पकड़ा और वो सालों से है तब वो अंधा हो सकता है। अगर हमने जल्द से जल्द उसको पकड़ लिया तो हम उसकी विजन को, उसके नर्व को, कंडीशन को दवाइयों से प्रेशर कंट्रोल करके लाइफ लॉन्ग बचा के रख सकते हैं। इसके लिए कुछ टेस्ट करने होते हैं, सिर्फ डॉक्टर भी देख के बता नहीं पाता है कि उसको काला मोतिया है कि नहीं। कोई विजुअल फील्ड के टेस्ट करने होते हैं, कोई स्कैन करना होता है, आई का प्रेशर चेक कराना होता है। 2 प्रकार के भी काले मोतिये होते हैं, किसी में आपको एंगल बंद होता है, किसी में एंगल खुला होता है। बेसिकली अगर मैं सिर्फ इतना ही आप पे स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि अगर आपके परिवार में किसी को काला मोतिया है और आपको अभी तक नहीं पता चला है तो आप एक बार आके चेक करवा लीजिए। एक हम जैसे ओपीडी में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लोटर्स, काले धब्बे दिखना। काले धब्बे जो आंख के सामने दिखते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे आंख में लेंस और पर्दे के बीच में एक जेल होता है। वो जेल जब हिलता है तो वो हमें काले धब्बे दिखते हैं। तो बहुत सारे कंडीशंस में वो नॉर्मल होता है, बट एल्डरली में अगर आपको अचानक बहुत सारे मच्छर, जैसे कुछ धब्बे हैं जैसे हर व्यक्ति को दिखते हैं, जिनको माइनस नंबर होता है उनको भी काले काले धब्बे आंख के सामने मच्छर जैसे दिखते हैं। पर अगर आपको अचानक ढेर सारे मच्छर दिख रहे हैं या 100 के हजारों के तादाद में काले काले धब्बे दिख रहे हैं, या अगर आपको लाइट चमकती हुई दिख रही है एकदम तेज लाइट, तो उस समय आपको इमरजेंसी में आके दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि रेटिना में कहीं पे आपके दरार पड़ गई है या कहीं थोड़ा सा होल हो गया है। ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब हो, जैसे ही आपको रियलाइज हो वैसे ही आपको आके दिखा लेना चाहिए। ठीक है, अब ओल्ड एज में एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं ARMD। ARMD नॉर्मल, उसका नाम ही है एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। इसमें क्या है कि उम्र के कारण
जो देखने वाला एरिया है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक में कुछ कंडीशंस होते हैं और एक होता है जो बढ़ता नहीं है, एक होता है जो बढ़ता है। इसको भी अगर आप रेगुलर चेकअप कराएंगे तो हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और आपको कुछ बता सकते हैं जिनके कारण अगर जैसे ही बढ़ा हो तो आप आ जाए, हमें बता दें और हम उन्हें इंजेक्शंस वगैरह देके ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या है कि बेसिकली जब अगर बढ़ता है तो क्या है कि आपको जिस आंख में, एक तो मैं आपको पहले भी स्ट्रेस कर चुकी हूँ कि आपको जब भी है अपना ख्याल रखने के लिए बीच बीच में एक एक आंख बंद करके देखना चाहिए, क्योंकि कई बार जब दोनों आंख काम कर रही होती है तो एक आंख की प्रॉब्लम्स जो है वो दब जाती हैं, वो रियलाइज ही नहीं होता हमें कि एक आंख हमारी कुछ तकलीफ में है। तो जब ARMD मैंने आपको बताया, तो ARMD प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब पर्दे में थोड़ी सी सूजन आने लग जाती है एज रिलेटेड, तो फिर क्या होगा कि आप जब एक आंख बंद करके देखोगे तो जो नॉर्मल सीधी लाइन है वो आपको ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, डिस्टॉर्टेड दिखती है। नॉर्मली आपको कोई भी लाइन से जो सीधी दिखेगी, तो जब ARMD होती है तो डिस्टॉर्टेड लाइंस दिखती है। तो अगर आपको एक एक आंख बंद करके कभी डिस्टॉर्टेड लाइंस दिख तो आपको इमरजेंसी में आके दिखाना चाहिए। ठीक है। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली जिनके लिए हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि आंखों में जलन होना, ड्राई आई होना, आंखों से पानी निकलना। तो ये मैं आपको थोड़ा इस पे स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि तेज हमारे आंख का पानी भी धीरे धीरे सूखने लग जाता है। ठीक है। और अभी स्क्रीन टाइम तो सबका ही बढ़ गया है, मोबाइल का टाइम, इसमें जलन होती है, ड्राइनेस होती है, ये ड्राई आई डिजीज है। ये इतना ऐसी परेशान होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए कुछ ड्रॉप्स अगर आप रेगुलरली डालेंगे या हॉट फॉर्मेंटेशन करेंगे तो ये आपको सुकून दे सकती है। जैसे वाटरिंग, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि बेटा पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। अब ये सब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे बाल सफेद होते, वैसे ही हमारी ये जो लिड्स हैं ये लैक्स हो जाती हैं, ये ढीली पड़ जाती हैं, तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, पानी बहने लगता है। तो उसमें हम यही कहते हैं कि कुछ ऐसे आंखें बंद कर करके प्रॉपर लिड को टाइट करने का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पानी को ऊपर की तरफ पोंछ सकते हैं, कुछ ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, गर्म सिकाई कर सकते हैं, ऐसी जगह जहां बहुत तेज पंखे की हवा लगे उन सब चीजों से बच सकते हैं। मैं इन चीजों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि कई बार इन चीजों के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो छूट जाती हैं। इसीलिए ये कुछ ऐसी बीमारी, ऐसी चीजें हैं जो एज रिलेटेड है और इनका फाइनल हल कभी नहीं हो सकता। बट हाँ, दवाइयों से हम उस समय जो है वो थोड़ी देर का आराम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे डॉक्टर अमन खेरा ने कहा कि दवाइयों से भी आपके आंख में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट जो दवाई है वो है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स ऐसी दवाइयां होती हैं जो बहुत सारी बीमारियों में बहुत रेगुलरली यूज की जाती है। जैसे कि अगर आपको अभी कोविड समय में लंग का जो अगर प्रॉब्लम होता है तो उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली स्टीरॉइड यूज किए जाते हैं। जैसे किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनमें बहुत फ्रिक्वेंटली स्टीरॉइड्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में एक हाइड्रोक्सी वो HCQs होते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन होते हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। तो जैसे ये स्टीरॉइड्स, किसी भी प्रकार का आप स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आंख के प्रेशर जो है वो आपके बढ़ सकते हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जब आप स्टीरॉइड यूज कर रहे हैं तो उस बीच में आप अपने आई स्पेशलिस्ट को फ्रिक्वेंटली विजिट करें। जैसे लिवर ट्रांसप्लांट्स हुए होते हैं या लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट्स हुए होते हैं, उस बीच में भी उनके स्टीरॉइड्स यूज हो रहे होते हैं। तो इस बीच में आपको स्टीरॉइड्स, ऐसे कई कंडीशंस होते हैं जब में हम स्टीरॉइड्स तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, पर हम इतना जरूर चाहते हैं कि उस बीच में आप फ्रिक्वेंटली आई स्पेशलिस्ट को विजिट कीजिए, उनसे चेकअप कराइए, आई के प्रेशर्स चेक कराइए, ताकि हम प्रेशर्स जो बढ़ रहे हैं उनको दवाइयों से रोक सके। ठीक है। अब जैसे कई ऐसे हैं, जैसे कि अब आप कहेंगे कि ये तो आप बता रहे हो कि रेड फ्लैग साइन है, पर ऐसे कई होंगे जो ग्लूकोमा के पेशेंट है, ARMD के पेशेंट है, जिसमें फाइनली उस आंख में विजन कम हो गया। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप एक बार हमें आके दिखाइए। एक बहुत चीजें हैं जिसमें सिर्फ चश्मे के नंबर के अलावा भी कुछ लो विजन एड्स होते हैं, जिसमें पढ़ने के लिए आप बड़ा बड़ा देख सकते हैं, फील्ड ऑफ विजन बढ़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं जिससे आपकी लाइफ जो है वो बहुत आसान
हो सकती है अगर आपका परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो गया है। ठीक है, अब डॉक्टर अमन खेरा, मोस्टली आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और यू वांट मी टू कवर समथिंग एल्स. Dr. Samiksha, thank you so much. You have very nicely you have enumerated what are the common issues and the common problems like cataract के बारे में आपने बताया, ग्लूकोमा के बारे में बताया आपने, drying eyes, watery eyes. You see, one thing which I would like to reiterate what Dr. Samiksha said. मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ. What is very important is a regular checkup. We have to understand that either we have any issue like diabetes, high blood pressure, or are we on steroids or any other medicine. तो हमें पहले समझ आ जाना चाहिए कि हमें अपनी आईज का प्रिवेंटिव चेकअप कराना है. तो उसके लिए हमें 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, चाहे हमें कोई सिम्टम्स ना हो, it is important that we should go and get a checkup done. Even if we do not have these problems or maybe diabetes or hypertension, even then I still would say that a regular checkup is a must. And I am very sure if I ask you today, everyone here, कि आपको अगर आईज में प्रॉब्लम नहीं है और आप कितने, how many of you go for a regular eye checkup, I really do not think there will be many who will be actually doing it. And this is where the problem occurs. So I am just saying again that this is a very important point, that the regular checkup of the eyes have to be done. Dr. Samiksha has also mentioned certain common symptoms like dryness, like field of vision narrow हो जाना या उनको धुंधलापन नजर आना. These things we have to keep in mind so that कहीं हमको कभी ऐसा लगे not to take a chance, go and visit a doctor. But Dr. Samiksha, I would like to ask you one thing. Cataract आज बहुत common है हमारे country में. जी जी. So at times, at what stage should the patient go for a surgery for cataract? Because कई बार डॉक्टर कहते हैं कि नहीं अभी वेट करो. So what is the right way, right time, so that we don't exceed that point also and we don't go too early also? Actually, sir, now we have very sophisticated instruments, so we can go for. Earlier it was told कि जब तक पके ना तब तक cataract नहीं करना चाहिए. तो हम cataract surgery किसी भी point of पे जा सकते हैं. तो what we tell to our patients कि जब तक चश्मे से आपको best corrected visual acuity आपका अच्छा है, जैसे 6.6, 6.9 हमारा best corrected visual acuity होता है, मतलब चश्मे से सबसे अच्छा दिखने वाला, जब तक चश्मे से आपका वो चल रहा है तब तक आप चला सकते हैं. But basically it depends upon the lifestyle of the patients, comfort of the patients, कि उनकी requirement क्या है. जैसे किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई इससे ज्यादा हमें बेटर देखना है, तो हम किसी भी पॉइंट ऑफ पे कैटरैक्ट सर्जरी कर सकते हैं. जैसा there are several patients जिनको ब्राइट लाइट में, there are several type of cataracts जिसमें सेंटर में होता है और ब्राइट लाइट में उनको नहीं दिखता और डार्क में उनको ठीक दिखता है, और उनका मेजर काम है जैसे वो टहलते हैं, मेजर काम है जब उनको ब्राइट लाइट में करना है. तो ऐसे में अगर उनको 6.9 भी दिख रहा है या उनका विजन नॉर्मल समय में ठीक भी है, तो भी वो कैटरैक्ट सर्जरी पे जा सकते हैं. बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन व्हेन द पेशेंट्स वांट, व्हेन दे से कि अब हमारी जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है वो हैम्पर हो रही है, मैं इस विजन पे अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पा रही हूँ, उस वक्त पे आप कैटरैक्ट सर्जरी के लिए जा सकते हैं. Thank you very much for that. डॉक्टर अमन, जैसे आपने रेड फ्लैग साइंस कहे थे और विजुअल डिटोरिएशन, तो बेसिकली फील्ड ऑफ विजन पेशेंट नेवर विल कम टू नो. बेसिकली उनको अगर अचानक से आंख के सामने पर्दा दिखता है, अचानक ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, अचानक फ्लैशेस दिखते हैं, एक बिजली सी चमकती हुई दिखती है, या आप एक आंख में आप लगातार चेक करोगे तो एक आंख में अभी तक ठीक दिख रहा था, अचानक आपको लगता है कि विजन सडनली डिटोरिएट हो गया है, तो ये रेड फ्लैग साइंस हैं. उस समय आपको डेफिनेटली दिखाना चाहिए. एंड अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो आपको रेगुलरली दिखाना ही चाहिए एवरी 3 to 6 months पर. एक बड़ी कॉमन चीज सुनने में आती है, मैं थोड़े लेमैन टर्म से बोल रहा हूँ, जिसमें से लोग डर जाते हैं, इज रेटिनल डिटैचमेंट. रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है? What are the signs for that, and is it how dangerous is it, and what should be done? Can you please tell something on that?
सर बेसिकली रेटिनल डिटैचमेंट इज व्हाट, रेटिना एक पर्दा होता है जो बेसिकली जो लाइट सेंसिंग पार्ट होता है आई का, ठीक है, वो पर्दा अपने बेस से अगर अलग हो जाता है तो उसको रेटिना डिटैचमेंट कहते हैं। मोस्टली रेटिना डिटैचमेंट जो है वो तब होता है जबकि आपके आई में कोई होल होता है या आपको चोट लगी होती है, तभी रेटिना डिटैचमेंट होता है। तो अगर आप रेगुलर चेकअप कर रहे होंगे तो आपका जो रेटिना स्पेशलिस्ट है वो पहले ही होल अगर उसे आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो लेजर करके उन होल्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। बट अगर सडनली रेटिना डिटैचमेंट हो गया तो वही पेशेंट को सडनली एक आंख के नीचे ऐसे लगेगा कर्टन जैसी फीलिंग आ गई, जैसे कि एक कर्टन आपकी आंख के सामने आ गया है। अगर ऐसी फीलिंग आ गई है देन यू विल हैव टू रश टू अ रेटिना स्पेशलिस्ट, बिकॉज हम जितनी जल्दी फिक्स कर देंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं विजन के वापस लौटने के। पर अगर होल हो रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि मॉस्किटो लाइक जो फीलिंग है, काला धब्बा है, बहुत सारे फ्लोटर्स दिख रहे हैं या फ्लैशेस दिख रहे हैं, इनका मतलब भी ये है कि फ्लैशेस का मतलब है कि आपका कोई रेटिना का पार्ट वीक है, मतलब या कोई रेटिना का पार्ट डिटैच हो रहा है, कहीं से लटका है, वो हिल रहा है, तभी आपको फ्लैशेस दिखेंगे। तो मल्टीपल फ्लोटर्स, फ्लैशेस, कर्टन लाइक थिंग मीन्स रेटिना डिटैचमेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। बट अगर आपको फ्लोटर्स, काले धब्बे दिख रहे हैं, फ्लैशेस दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि यू कैन बी एट रिस्क, थोड़े बहुत होल हो रहे हैं तो आपको सडन रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और अपने होल्स को लेजर करवा लेना चाहिए। That is a very important point because retinal detachment can be dangerous also if it is not treated in time, and that can cause blindness. Correct me if I'm wrong, Dr. Samiksha, on that. यस, रेटिना डिटैचमेंट अर्ली अगर आप जाएंगे और रेटिना सर्जरी हो जाएगी देन विजन कैन बी ब्रॉट बैक, बट इफ इट इज डिलेड देन चांसेस ऑफ विजुअल रिकवरी इज वेरी लेस। Dr. Samiksha, what are the various I mean जो जिनको ग्लोकोमा, जैसे आपने ग्लोकोमा के बारे में बताया, तो उसमें क्या मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं? समटाइम्स दे से दैट अ सर्जरी इज रिक्वायर्ड प्रॉब्ली एंड समटाइम्स द मेडिकेशंस आर रिक्वायर्ड। कैन यू प्लीज टेल अबाउट दैट? सर ग्लोकोमा इज अ प्रॉब्लम जिसमें आई का प्रेशर बढ़ा होता है, ठीक है। तो दो टाइप के ग्लोकोमा होते हैं, एक एंगल बंद होता है, एक ओपन एंगल होता है। तो ग्लोकोमा का जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक इरिवर्सिबल डिजीज है, आप आगे उसको पीछे वापस नहीं जा सकते हैं, पर वहां पे आपको रोकना है। तो प्रेशर कम करना ही हमारा मेन एम होता है। तो प्रेशर कम करने के लिए हम सबसे पहले ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। पहले एक दे सकते हैं, धीरे धीरे जितने ड्रॉप्स हैं, मैक्सिमम ड्रॉप्स से भी अगर हमारा प्रेशर जितना हमें जरूरी है, जरूरी मतलब हम हर नर्व को देख के डिसाइड करते हैं कि इस आई के लिए 11 प्रेशर होना चाहिए या इस आई के लिए 18 प्रेशर होना चाहिए। अगर हमारी दवाइयों से भी उतना प्रेशर अचीव नहीं होता है तभी हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, एंड दैट टू सर्जरी इज ओनली डन टू रिड्यूस द प्रेशर। Surgery won't improve the vision, surgery won't improve the status of the nerve, surgery will only reduce the intraocular pressure, eye का pressure। और eye का pressure जितना हमने target सोचा है उतना अगर maintain रहेगा तो आगे progression nerve के deteriorate होने के chances नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि दूसरा एंगल क्लोजर होता है ग्लोकोमा, उसमें एक आंख में लेजर करना पड़ता है, तभी वो रूट कॉज खत्म करने के लिए एक लेजर करना पड़ता है और तभी दवाइयां एक्ट करती है। तो दो टाइप के ग्लोकोमा, अगर ओपन है तो सिर्फ दवाइयों से काम चल जाता है और दवाइयों के बाद सर्जरी की जरूरत तब पड़ती है जब दवाइयों से कंट्रोल में नहीं होता। और एंगल क्लोजर अगर किसी ने बताया है तो पहले लेजर करना पड़ेगा तब दवाइयों से कंट्रोल। ऐसा भी होता है that certain medications tend to precipitate glaucoma. There are various medications that can precipitate glaucoma, जैसे कि अगर एंगल आपका बंद है तो डायलेटिंग ड्रॉप्स जो हम डायलेट करते हैं उससे भी ग्लोकोमा हो जाता है, जैसे कि एट्रोपिन होता है, जैसे कि ट्रोपिकामाइड ड्रॉप्स होते हैं। वेरियस एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस होते हैं जिनमें एंगल बंद हो जाता है, ग्लोकोमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। स्टीरॉइड्स are one of the most important causes of glaucoma nowadays, क्योंकि ओवर द काउंटर स्टीरॉइड्स बहुत बिकते हैं। और इवन आपने अगर स्किन की कहीं छोटे टो में भी लगा रहे हो तो भी उस स्टीरॉइड से आपके प्रेशर्स बढ़ सकते हैं, स्टीरॉइड से भी ग्लोकोमा प्रेसिपिटेट हो। Doctor, there is a question that is saying that although the session is for elderly, that's okay, fine, doesn't matter.
However, I have a query for a 5-year-old son. एक 5 साल के बेटे के लिए है कि we need to give him steroids in form of puffs, sometimes due to asthmatic conditions, especially in winters and monsoon season. So that means he must be on regular steroid puffs. So do you need to get a eye checkup done for him also? Yeah, definitely. स्टीरॉइड्स किसी एज के नाम पे ऐसा नहीं कि वो रिस्पॉन्डर है कि नहीं, आप बता नहीं सकते। किसी भी आदमी को किसी भी स्टीरॉइड से कभी भी प्रेशर बढ़ सकता है। आप एक बार चेक करवा लीजिए, और थेरेपी के बीच में भी हर 2-3 महीने पे चेक कराते रहिए। अगर हाई प्रेशर्स होंगे तो प्रेशर कम करके रखने की जरूरत। This is a very important thing which Dr. Samiksha has said, और I am again repeating it for everybody. Please be very careful. आप में से किसी को अगर ग्लूकोमा है और ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, एंड इफ यू गो टू एनी डॉक्टर फॉर एनी अदर रीजन, always tell them that you are having glaucoma and you are on treatment, because any medication probably they may add that can precipitate. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को ग्लूकोमा है और वो उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और यदि वो किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर एनी अदर रीजन, फॉर एनी अदर सिस्टमिक प्रॉब्लम, चेस्ट प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, तो प्लीज उनको बता दें कि यू हैव ग्लूकोमा, बिकॉज कोई ऐसी दवाई बोना स्टार्ट करें जिससे ग्लूकोमा फर्दर प्रेसिपिटेट हो सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, and lot of people due to arthritis or due to certain reasons are on steroids. So this is very important, very important point. Doctor साहब, there are lot of people have जो ये what we call the cornea, या जो पुतली कहते हैं, जिसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, that can also cause blindness. What can you say something about that, how to avoid that, and what would be the reason behind that? सर बेसिकली कॉर्नियल अगर इन्फेक्शन अनट्रीटेड रह जाए तो ही उसमें वाइटनेस आती है। तो जैसे कि कॉर्नियल इन्फेक्शन है, जैसे कि अगर किसी कारण से चोट लगी है तो उसको इमीडिएटली रिपेयर करवा ले, या कोई इन्फेक्शन है तो बेसिकली नाउअडेज द ओवर द काउंटर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स इज वेरी हाई। तो अगर आप ढंग से नहीं दिखाते हैं तो कॉर्नियल इन्फेक्शन में भी स्टेरॉइड्स दे देते हैं, तो फिर आपकी कॉर्निया मेल्ट वगैरह होने लग जाती है। तो जैसे I would just want to emphasize that if you have redness, if you have some trauma, then proper कहीं ढंग से आप दिखा लीजिए उसको और उसका प्रॉपर इलाज करा लीजिए, क्योंकि एक लेवल तक कॉर्नियल ओपेसिटी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। बट अगर हमने उसका समय निकाल दिया, वो पूरी स्कारिंग हो गई, तब बहुत मुश्किल हो जाती है, तब उसमें विजन जो है वो चला जाता है। बट अगर हमने कोई भी इन्फेक्शन को या कोई भी ट्रॉमा को राइट समय पे, जैसे फॉरेन बॉडी है, आयरन फॉरेन बॉडी आते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनको आयरन फॉरेन बॉडी चला जाता है। वो अगर आपने जिस दिन गया उस दिन निकाल लिया तो कुछ नहीं होगा, अगर आपने 2-3 दिन छोड़ दिया तो उसमें फिर घाव बनने लग जाएगा, फिर उसमें सफेदी आ जाएगी। इवन देयर आर सो मेनी केमिकल बर्न, जैसे कि चूना चला जाता है, हार्पिक चला जाता है। ऐसे में अगर आपको कुछ होता है तो उसी वक्त आके अपनी आई को ठीक करवा लीजिए, उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लीजिए, क्योंकि वो अगर एक बार नुकसान हो गया तो फिर उसमें वाइटनेस आ जाती है, तो उसमें ब्लाइंडनेस आ जाता है। एक अगर आपने उसको सही समय पे इलाज करा लिया तो इतना जल्दी वाइटनेस और ब्लाइंडनेस नहीं आता। That's again also very important, because if there's any trauma, कोई चीज आंख में चली जाती है, कई बार बच्चों को खेलते हुए चली जाती है, तो one has to be very careful, and one has to make sure कि उसी वक्त आई वॉश कर लें, या अगर बाई चांस अभी भी रगड़ लग रही है तो not to wait but to go and get a checkup from the eye specialist done. एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा था, और अभी किसी ने पूछा भी है, that what exercises for the eyes should be done in a regular way, if at all it has to be done, and any exercise that can maintain the normal eye pressure. So मतलब there are two questions in a way. एक तो eye pressure से related exercises के लिए है, और एक general मैंने पूछना चाहता था कि ऐसी कुछ exercises elderly age group में regularly कुछ करनी चाहिए। अगर आप कुछ, if you can demonstrate anything, we will be happy to see that. सर बेसिकली आई प्रेशर्स, अगर आई प्रेशर की बात करेंगे तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे तो आई प्रेशर कम हो जाएगा। बट नाउ स्टडीज शो कि मतलब हल्का, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट योगा, वॉकिंग, एंड जो भी माइल्ड एक्सरसाइजेस है, माइल्ड मतलब कि
हम ग्लूकोमा में ये भी मना करते हैं कि शीर्षासन या ऐसा कुछ जिसमें कि आई का प्रेशर, ऊपर वाला पार्ट का प्रेशर बढ़े, वो अवॉइड करना चाहिए। शीर्षासन अवॉइड करना चाहिए, जो एक जिसमें आई का प्रेशर बढ़ता है नाक से, उसका आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट योगा पार्ट, वो सब अवॉइड करना चाहिए। और एक साथ मुझे एक अचानक बीच में याद आ गया, एक साथ अगर आपको 1-1.5 लीटर पानी सुबह सुबह पीने की आदत है तो वो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सीधे एक साथ 1.5-2 लीटर पानी पीने से जिसको रिस्क होता है ग्लूकोमा का, उसके प्रेशर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। बाकी नॉर्मल जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं वो ओवरऑल आई को हेल्प ही करती है एंड प्रेशर्स को लॉन्ग टर्म में मेंटेन ही करती है। बट ऐसा नहीं है कि आप दवाई नहीं डालोगे और एक्सरसाइज कर लोगे तो आपका प्रेशर 20 से 15 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट लॉन्ग टर्म it always helps. Exercises and mild yoga always helps in maintaining the health of the eye. और जो जैसे आप जो आई के इन प्रॉपर आई के एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लगातार स्क्रीन्स देखते हैं, आजकल बहुत आ गए हैं, एल्डरलीज में भी आए हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम सबका बढ़ गया है, स्क्रीन्स देख के आई एक बढ़ गई है, ड्राइनेस बढ़ गई है। तो उसमें हम बस इतना ही सजेस्ट करना चाहेंगे कि उसमें आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए। ठीक है, 20-20-20 रूल फॉलो करना चाहिए। एवरी 20 मिनट्स पे 20 मीटर दूर देख के 20 सेकेंड्स तक आप रेस्ट कीजिए। दूर देखने से आई रिलैक्स होती है। पूरा ब्लिंक कीजिए, जैसे आईज को पूरा ब्लिंक कीजिए तेजी से, क्योंकि हम आजकल जब लगातार स्क्रीन पे करते हैं तो हमारा फुल ब्लिंक नहीं होता, हाफ ब्लिंक हो जाता है, विंक की तरह हो जाता है। तो फुल ब्लिंक कीजिए। बेसिकली कुछ एक्सरसाइजेस पेन पुशअप एक्सरसाइजेस होते हैं, पर वो एल्डरली के लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते। यंग बच्चे हैं वो कन्वर्जेंस स्ट्रेंथनिंग के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं वो कर सकते हैं। एल्डरली तो पूरा उनको फुल आंख बंद करना चाहिए और पूरा आंख को ऐसे मीच के ऐसे करना चाहिए, तो ये जो मसल्स है उनके वो पूरा जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर। Any other exercises you recommend for the eye muscles so that the ताकि उनको विजन में दिक्कत ना हो generally? Sir, frankly speaking, there is no exercise that can help. वही ब्रेक्स लेने चाहिए और फुल ब्लिंक करना चाहिए। डॉक्टर एक क्वेश्चन है, मैं धूप में से जैसे घर के अंदर आते हैं तो थोड़ी देर दिखता नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक सा हो जाता है। सर आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ग्लूकोमा की ड्रॉप्स तो मैं डाल रहा हाँ हूँ। सर, मैं वही कह रही थी, ग्लूकोमा की ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लाइट से डार्क में जाएंगे और डार्क से लाइट में जाएंगे। नॉर्मल भी, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति भी जब धूप से अचानक अंधेरे में आता है तो उसे टाइम लगता है अडेप्ट होने में। इसको कहते हैं डार्क अडेप्टेशन। अडेप्ट होने में टाइम लगता है, पर ग्लूकोमा वालों में ये अडेप्टेशन करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आप जब धूप से इसमें डार्क में आओगे और डार्क से अचानक ब्राइट में जाओगे तो ये तकलीफ आपको होगी ही। तो ये इट्स मतलब इट्स अ सिम्टम ऑफ सीवियर ग्लूकोमा। इसीलिए इसका बस यही है कि इस समय जो ये ट्विलाइट का फेज होता है, जब आपका ये वाला शाम का समय है, इस समय आपको सीढ़ी चढ़ना या कोई ऐसी चीजों में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सिम्टम ही है, ये आप इसको ठीक नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा था, इसको रिवाइव नहीं कर सकते। बस इस समय आपको ट्रैवल करना, सीढ़ी चढ़ना या कुछ भी अवॉइड ही करना चाहिए, ये ग्लूकोमा का सिम्टम है। थैंक यू डॉक्टर। समीक्षा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है which I'm sure everybody would be will get affected by that question, although भी शायद सोच नहीं रहे हैं। जब हम ग्लासेस लेते हैं, when we buy our glasses, you see commercially there are lot of different type of glasses available. सब कहते हैं कि जी ये है, वो है, ये इतना ही कॉस्ट है, वो उतनी कॉस्ट है। so what do you suggest, what should be the nature or the feature of the glass that is the right thing to be used? I hope I am clear on my question on that. नहीं सर, I know. Basically सर, एंटी ग्लेयर एंड ब्लू कट वाला जो कंसेप्ट है, एंटी ग्लेयर तो एवरीबडी रिक्वायर्स। ठीक है, इफ दे हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम एंड इवन जो प्रॉब्लम्स, एल्डरली प्रॉब्लम्स में एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगाना तो जरूरी है। ये ब्लू कट वगैरह बच्चों के लिए ठीक है, एंटी ग्लेयर से काम चल जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि
नॉर्मल मतलब कोई भी लेंस से ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता है. एंटी ग्लेयर इज अ नेसेसरी एंड इट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड द आई. बाकी कोई भी आप ग्लास ले सकते हैं, बेसिकली उतना फर्क नहीं पड़ता. So what is important is that the glasses should be anti-glare. That is more important than anything else. डॉक्टर, राइट वे ऑफ पुटिंग आई ड्रॉप्स समझाएंगी जरा? हाँ सर, आई विल हेल्प यू आउट. सबसे बड़ी बात कि आप बैठ के डालिएगा, ठीक है, और थोड़ा लिड को ऐसे टिल्ट करते हैं. पहले हेड को आप ऐसे टिल्ट करिएगा और लोअर लिड को ऐसे खींचिएगा, ठीक है. जैसे ही आपने लोअर लिड खींचा तो आपको ये दिख रहा है कि आपको एक गैप सा मिल गया है. उसमें दूर से बस इसके ऊपर एक ड्रॉप डाल देना है. डाल के आंख को बंद कर लेना है, एक्स्ट्रा को पोंछ लेना है और आंख को बंद करके रखना है. यहाँ पे ये जो एरिया है ना नोज के पास, उसको 3 मिनट तक दबा के आंख को बंद करके रखना है, ठीक है. ये राइट तरीका है ड्रॉप डालने का. और ग्लूकोमा के जो भी ड्रॉप्स हैं वो स्किन पे भी रिएक्ट करते हैं, तो इसीलिए आप डाल के जो एक्स्ट्रा है उसको वाइप कर दीजिए. और ऐसा बंद करके रखना बहुत जरूरी है ताकि वो सिर्फ आंख में ही एब्जॉर्ब हो और बाकी बॉडी में ना आए. ठीक है, ऐसे करने से साइड इफेक्ट्स कम होते हैं. ओके, थैंक यू. ठीक ठीक. थैंक यू डॉक्टर. I think that was very important and very I would say rightly shown by Dr. Samisha, because ये एक practical चीज है जो कि सबको पता होनी चाहिए. It's very important for the glaucoma patients because they have to put a lot of drops. Exactly. That definitely that's an important thing. There's another question. Any suggestion for a young person or an engineer who spends 8 to 10 hours on laptop? Now this is a very important thing, because आज की ऐसी generation आ गई है. Even we see in our family, जब बच्चे, especially because in the COVID, students have not been going to school, तो उनको school at home हो रहा है. They are teaching online classes हो रही हैं. The duration is tremendously, I would say, increased. So this is a very pertinent and a very important question. What suggestions you give for not only youngsters and engineers, anybody, as a matter of fact, anybody who's spending around 10 hours a day on the laptop? I just told, take frequent breaks. अगर कोशिश हो तो मोबाइल छोटे स्क्रीन से अवॉइड कीजिए, प्रॉपर बड़े स्क्रीन पे एक 1 आर्म डिस्टेंस पे कीजिए. पोस्चर भी बहुत जरूरी है. ऐसे सिर्फ पोस्चर अगर आप ऐसे ज्यादा बेंड करके रहेंगे तो भी बहुत दिक्कतें होती है. लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए. फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, इसके वही जैसे मैंने आपको कहा था 20-20-20 रूल. जितनी बार आप एंटर करो उतनी बार आंखों को ब्लिंक करो. लुब्रिकेशन प्रॉपर करो. और ब्रेक्स मतलब कि आप चाहो तो एक हर आधे घंटे में एक चक्कर घूम के आओ. स्क्रीन पे लगातार और प्रोडक्टिव यूज करो, मतलब लगातार स्क्रीन पे गड़ाने से अच्छा कुछ इंटरेक्टिव पे समय लगाओ. वही है फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, प्रॉपर लुब्रिकेशन ऑफ द आई and follow the 20-20-20 rule. That's the whole thing. I hope the question has been answered and everybody has listened to that, because I'm sure this is happening in almost every family today. डॉक्टर, एक चीज और पूछनी थी, किस एज तक स्पेक्स रिमूव करके वो ऑपरेशन के थ्रू करवाई जा सकती है? सर आइडियल तो 20-21 साल पे करा लेना चाहिए, पर 30-35 इयर्स पे भी हो रहे हैं. 30-35 इयर्स पे होने का एक ही वो है कि सर 40 साल में सबको ही पास का नंबर लग जाता है, तो आपका जो स्पेक्टेकल फ्री टाइम है वो कम रहेगा. अगर आप जैसे 35 साल में आपने रिमूव भी करवाया, चलिए चश्मा सर्जरी करके, तो आपको कुछ सालों के बाद तो आपको प्लस का चश्मा लगना ही है. तो वो मतलब जो आप कॉस्मेटिक्स के लिए यूज कर रहे हैं वो फायदा नहीं हो पाता. बट हाँ, अगर जरूरत होती है तो इवन 30 एज पे भी होता है. बट आइडियल समय है जब वो 19 मतलब 21 इयर्स पे जब चश्मे का नंबर बढ़ना बंद हो जाता है, तब आपको आइडियली उस समय जो चश्मा रिमूव करवाना है वो आप करवा सकते हैं, ताकि आप एक्चुअली में कॉस्मेटिक्स को एंजॉय कर सकें. And how safe is that? हाँ, How safe is that? हाँ, पीपल आर डूइंग वेरी वेल सर. जो आई लेसिक आजकल हो रहे हैं, जो बहुत ही हायर एंड लेसिक होने लगे हैं, एंड पीपल आर डूइंग वेरी वेल सर.
now we personally recommend because they are very happy. जिनका माइनस नंबर होता है उनको बहुत छोटा दिखता है चश्मे से, फिर वो चश्मा उतार के जैसे गुम गया टूट गया तो उनको दिक्कतें होती हैं. So they are very happy after LASIK, and people are doing very well because now the system is very sophisticated and the machines are very good. They are doing very well. अगर कोई आफ्टर 40 डॉक्टर करवाना चाहे तो उसके लिए क्या वो है? सर आफ्टर 40 होना मुश्किल है क्योंकि आफ्टर 40 प्लस और माइनस दोनों नंबर आ चुका होता है. प्लस का मैंने आपको कहा ना 40 साल के बाद हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्लस का नंबर आ जाता है. तो दोनों नंबर हटाने वाले लेसिक अभी उतने सक्सेसफुल नहीं है. जो सिर्फ माइनस नंबर वाले लेसिक हैं वो सक्सेसफुल. थैंक यू. So, today there are certain things which even I was actually noting down, which are very, very important. What Dr. Samiksha has said is the importance of getting a regular eye checkup done. मेरी सबसे request है, please, even if whether you have a problem, whether you don't have a problem, please get a regular eye checkup done at least once in 6 months. Especially if you have got diabetes, high blood pressure, and if you have no symptoms of eye or related to eye, please make sure that your sugar, your blood pressure are controlled and you get a regular eye checkup done. This is very, very important because I have always said in my previous discussions also, preventive healthcare is very important, and that is how we all avoid serious problems or at least delay them as much as possible and lead a better quality life. I think it has been a very good discussion today where we have realized that that a regular eye checkup at least once in 6 months should be done, and what should be done at what particular time, and of course what were the red flags or maybe what are the symptoms when somebody should be going and seeing a doctor. Chalo, thank you very much everyone. It has been a great pleasure today interacting with Dr. Samiksha, and again repeating the same thing, get your eyes checkup done. If you need any help, you can please contact Care for Parents and we can try to connect you with the right kind of doctors. Hi sir, sorry to interrupt you sir, Dr. Actually I am Shubham Chopra from marketing team from Shrophi Center. Yes. So basically it's just a normal introduction from my side to you. It's whenever the patient want to connect it with Shrophi Center, it's very free to contact me. I am Shubham Chopra from Business Development Department. Okay, so we are providing 50% discount on OPD and 10% discount on OPD procedure for Care for Parents. Okay, so whatever we are agree to give the patients to us, we are free to contact you. Okay, thank you so much. Thank you so much, Shubham. I am really happy to hear that, and that goes as a bonus today for everyone. That thank you very much for our members of Care for Parents. They are offering very generous discounts for checkups, and I think one should make use of this opportunity and get a checkup done. Checkup karana to hai hi. Why wait for a problematic situation to come? So I would request all our my audience and everybody who's here that if you have to get it done, make use of it. Contact our relationship managers and we'll coordinate everything. We'll fix up all your appointments, and of course Shubham is sitting in front of us now, and he will definitely make sure that things are done in a proper and in a more comfortable way for everybody. Yeah, thank you so much, sir. So thank you everyone for joining today. We had a great time today. We learned quite a lot, and I'm sure you have also listened to Dr. Samiksha and learned quite a lot. And do let us know if you need any help. We are always there to help you. Thank you. Thank you, Dr. Aman. It was nice being with so many elderly people. Thank you. Thank you for having me. Thank you very much. Thank you, everyone.